ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رہائش E7 اسلام آباد میں ہے۔ طویل قانونی جدوجہد کے بعد عدلیہ نے چند دن پہلے انہیں آزاد شہری قرار دیا۔ پولیس اور ایجنسیوں نے جیو ٹیم کو ڈاکٹر خان کے گھر کیمرے لے جانے کی اجازت نہیں دی، صرف موبائل فون سے تصویریں بنائی گئیں۔ لمبے مذاکرات اور ڈاکٹر خان کے اصرار کے باوجود کیمرے اندر لانے کی اجازت نہ ملی، جس پر ڈاکٹر قدیر خان نے بطور احتجاج کوسار مارکیٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں بھی پولیس اور ایجنسیوں کی روک تھام جاری رہی، لیکن میڈیا کے آنے اور ڈاکٹر قدیر کی جرأت سے یہ پابندی ٹوٹ گئی۔ کرسی میز پر گفتگو کی اجازت نہ ملی تو فٹ پاتھ پر ہی انٹرویو شروع کر لیا۔ بچپن بھوپال میں گزرا، بھوپال کی کون سی یادیں اب بھی ذہن میں تازہ ہیں؟ بھوپال آج بھی جنت ہے۔ بھوپال سے خوبصورت جگہ نہیں ہے پورے ہندوستان میں۔ بھوپال کے لوگوں سے اچھے لوگ نہیں ہیں کہیں۔ کتنی تعلیم وہاں سے حاصل کی؟ میں نے میٹرک پاس کیا تھا وہاں۔ اور باقی تعلیم کراچی سے حاصل کی؟ کراچی میں BSc کر کے میں نے 3 سال ملازمت کی۔ میں انسپیکٹر تھا ویٹس اینڈ میجرز کا۔ پھر میں نے دیکھا کہ مواقع اتنے اچھے نہیں ہیں، یعنی آپ کا ایک جوش ہوتا ہے نا کہ پروگریس کے، تو پھر میں برلن چلا گیا۔ میں نے تعلیم وغیرہ سب خود محنت کر کے کی۔ میں کام بھی کرتا تھا، پڑھتا بھی تھا۔ مجھے کوئی گورنمنٹ سے اسکالرشپ وغیرہ نہیں لیا، میں نے لیا تھا۔ گئے تو وہاں پڑھنے، لیکن وہاں جا کر دام عشق میں گرفتار ہو کر شادی بھی کر لی۔ نہیں، وہ کیا پسند آیا؟ دیکھیے، ہمارے گھر والوں نے کبھی اس پہ اعتراض ہی نہیں کیا تھا، نہیں کہتا کہ تم شادی مت کرنا۔ ہمارے یہاں بہت ہی اچھا ماحول ہے۔ ہم پرانی وضع کے ہیں بھوپال میں، لیکن ہمارے یہاں لڑکوں کو بھی لڑکیوں کی اجازت ہے، اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں۔ جب میں وہاں گیا تو 2 باتیں تھیں، یا تو یہ کہ میں مارا پھرتا، جو عام رواج ہے یہاں پہ، کیونکہ آپ کا ایکسپوجر نہیں ہوتا لڑکیوں کے ساتھ، کہ میں ان چکروں میں پھرتا، مارا پھرتا۔ یا دوسرا طریقہ یہ تھا، جو ایک دوست نے بھی مشورہ دیا تھا بہت اچھا، اور بھائی نے بھی، کہ اگر تمہیں کوئی اچھی لڑکی ملے تو شادی کر لینا، کوئی غلط کام مت کرنا۔ بھوپال میں ہمارے یہاں یہ رواج ہے، رہا ہے۔ ہم نے کبھی آپ کو کوئی بھوپالی نہیں ملے گا جس نے حرام کیا ہو۔ ہم نے اسی لیے شادی کر لی کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی حرام نہ کریں۔ اپنی ہونے والی بیوی میں اچھا کیا لگا تھا؟ بہت نرم مزاج اور بہت سمجھدار۔ پہلی ہی نظر میں عشق ہوا تھا؟ نہیں، ہم ملے 1-2 مرتبہ۔ مجھے ان کی طبیعت پسند آئی، انہیں میری طبیعت پسند آئی۔ میں نے ان کو آفر کیا منگنی کا، ان کو جی میں والدین سے پوچھ لوں۔ والدین سے پوچھا، ٹھیک ہے۔ منگنی کے لیے ہم برلن میں تھے اس وقت، اور پھر شادی ہماری ہالینڈ میں ہوئی، ایمبیسی میں، پاکستان ایمبیسی میں۔ اور قدرت اللہ شہاب میرے گواہ تھے، اور نکاح جمیل الدین حسن صاحب نے پڑھایا تھا۔ ابھی بھی ان حالات میں جس طرح بیگم نے ساتھ دیا ہے، شاید ہی کوئی پاکستانی عورت ساتھ دے سکتی۔ کھانے کون سے پسند ہیں؟ بریانی بہت پسند کرتے ہیں، پراٹھے پسند کرتے ہیں، شامی کباب، قورمہ، عربی کا گوشت، پکا بھی لیتے ہیں؟ بھنڈی۔ کھانا بڑے اعلیٰ دیکھ پکاتا ہوں۔ جب میں نے PhD کی تھیسس ڈیفینڈ کر رہا تھا، تو میرے جو پروفیسر تھے ہالینڈ کے، وہ بیلجیم آئے، بہت مشہور بین الاقوامی شہرت کے پروفیسر تھے۔ تو میں نے کھانا پکایا تھا ان کے لیے۔ تو انہوں نے جب کھانا کھا کے تو میری بیگم سے کہا کہ اس نے تو اپنے 7-8 سال ویسے ہی ضائع کر دیے، اب نوکری کرتا پھرے گا۔ یہ اتنا اچھا کھانا پکاتا، اگر ایک ریسٹورنٹ کھول لیتا تو اب تک یہ کروڑ پتی ہو جاتا۔ طویل نظر بندی کاٹی، آپ کے روزانہ معمولات کیا ہوتے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھی، بلیوں کو کھانا دیا، اپنے اسٹاف کے لیے چائے بنائی۔ اسٹاف کے لیے چائے خود بناتے ہیں؟ ہمیشہ خود بناتا ہوں ان کے لیے۔ ان کے لیے چائے بنائی، ان کے لیے جلیبی ٹیبل پہ رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد میں نے بیگم اٹھ گئیں، ان کے ساتھ ناشتہ کیا، بلیوں کو کھانا دیا، ان کے ساتھ ناشتہ کیا۔ اس کے بعد تھوڑی واکنگ کی باہر، اس کے بعد آ کر بیٹھا، تلاوت کی۔ تلاوت میں ضرور کرتا ہوں روز 1 گھنٹہ۔ اخبار پہ نظر ڈالی، اس کے بعد نرس آ گئی، ڈاکٹر آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ ابھی زندہ ہے، حیات ہے، اس کا دل دھڑک رہا ہے نہیں دھڑک رہا۔ اچھا، اس کے بعد فزیوتھراپسٹ آ گئے، انہوں نے ایکسرسائزز کرائیں، تو 12 بج جاتے ہیں۔ اچھا، 12 بج گئے، اس کے بعد 5-10 منٹ بیٹھے، TV دیکھا،
लंच किया बेगम के साथ, ज़ोहर पढ़ी, थोड़ा रेस्ट कर लिया, उठे, उसके बाद बेगम के लिए सबसे पहला काम, बेगम के लिए अगर सर्दी का सीज़न है तो उनके लिए गरम शोको बनाई, चॉकलेट, और अगर सर्दी के सीजन, गर्मी के सीजन जैसे आजकल, तो उनके लिए लस्सी बनाई और उसके अंदर आम का रस मिलाया और उनको गिलास जाके दिया। वो इतने में उठ के आ गई तो उनको लस्सी दी और उसके बाद अपने लिए काफ़ी बनाई, बैठ गए। दोनों बेटियां कहाँ मुकीम हैं? छोटी बेटी तो हमारे घर के पास ही रहती है बिल्कुल, उसकी 3 बच्चियाँ हैं माशाल्लाह, और बड़ी बेटी जो दुबई होती है उसकी जो बेटी है नवासी, वो हमारे साथ ही रहती है। तो यही तो सबसे बड़ी बदमाशी थी कि जिन लोगों के साथ हमने इतना एहसान किया कि हमारी बच्ची जो हमसे 200 गज दूर रहती है उसको 4-4 महीने हमसे नहीं मिलने दिया, वो नवासियों को, और हमारा जो फैमिली डॉक्टर था उसको नहीं मिलने दिया, आने नहीं दिया 3-3, 4-4 महीने, और बहन भाइयों को नहीं मिलने देते थे 2-2 महीने, 3-3 महीने। और आप अभी भी देख लें कि कोर्ट के आर्डर के बावजूद किस तरह लोगों को परेशान कर रहे हैं आप लोगों को। 2 बार निशान इम्तियाज़ मिला, 1 बार हलाल इम्तियाज़, क्या ये निशान अभी तक आपके पास हैं या ये भी वापस ले लिए गए? नहीं, ये तो मेरे पास है। तो इनका भी तो कुछ फ़कार है? ये तो कोई ले नहीं सकता, ये तो जब तक कि मैं खुद वापस ना करूं। और ये मैं इन चोरों के हाथों से थोड़ी लिया, मैंने अपनी मेहनत के बल पे लिया है। जो मैंने इस मुल्क को दिया उसकी रिकग्निशन में बेनज़ीर साहिबा ने दिया और नवाज शरीफ साहब ने दिया। धमाकों के बाद एक निशान देखे, जुल्फ़कार अली भुट्टो, जनरल ज़ियाउल हक, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, जनरल मुशर्रफ, सदर आसफ ज़रदारी, तो आपको कौन सबसे अच्छा लगा? गुलाम शाह साहब से बढ़ के कोई मुहिब वतन और सिंसियर आदमी पैदा नहीं हुआ इस मुल्क के लिए। डॉक्टर साहब, ज़िंदगी में सबसे खुशी का लम्हा और गमज़दा लम्हा कौन सा था? जब मिज़ाइल फायर की 6 अप्रैल 98 को गौरी सक्सेसफुल रही, बेहद खुशी हुई। जब 28 मई को न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए, बेहद खुशी हुई कि भाई हमने जो मेहनत की थी इतने बरसों वो कारामद रही। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने एटॉमिक पावर बन गया। गमज़दा लम्हा कौन सा? कम ज़्यादा तो बस यही है जो हमारे साथ सलूक किया, इससे बढ़ के और क्या होगा, इससे बढ़ के और कोई गमज़दा नहीं था। यानी गद्दार, जो ख़ुद गद्दार मुल्क को बेच दिया, पाकिस्तानी को बेच के पैसे लिए, वो मुहिब वतन है और हम गद्दार हैं। आम तौर पर साइंसदानों के बारे में तसव्वुर किया जाता है कि वो बहुत 2 + 2 4 की बातें करते हैं। आपका कोई अदबी या शेरी ज़ौक़ है? साइंस और टेक्नोलॉजी वगैरह ये तो हमारा वो जो कहते हैं ना साइड मशगला है, ये तो हॉबी के तौर पर कर लिया। असली तो हमारी जो तालीम है, जो बैकग्राउंड है, तो वो अदब की है। पसंदीदा शायर कौन? पसंदीदा शायर तो बहुत सारे हैं। आप शुरू कीजिए, गालिब थे और मोमिन थे और मुसफ़ी थे और क्या नाम है अपने जिगर थे और जोश थे और अल्लामा इकबाल थे और मजाज और फराज और फैज़, सभी सब आला पाए के शायर, सब अदम। देखिए हर शायर का कुछ ना कुछ कलाम इतना आला होता है कि वो गैर मशहूर शायरी हो, 1-2 गज़लें ऐसी मिलेंगी कि आप तड़प जाते हैं। अपने ये थे क्या नाम था, अख्तर शीरानी, उनका कलाम देख लीजिए, रोमानवी कलाम, रोमानी कलाम बहुत ही प्यारा। 11 मसाजिद, शहाबुद्दीन गौरी का मज़ार और बहुत सारे हेल्थ और कम्युनिटी मराकज़। फलाही कामों के पीछे जज्बा क्या था? देखिए हमारा जो माहौल है घरेलू, वो हमेशा से यही रहा है कि दूसरों की मदद करो। वालिद हमारे हेड मास्टर थे, बचपन से आँख खोली तो देखा कि बच्चों को पढ़ाते थे महल्ले के सब। वालिदा थी इसी तरह गरीबों की मदद करती थी, बच्चियों को कलाम मजीद पढ़ाती थी, उनको कपड़े देती थी, जोड़े देती थी, पैसे देती थी। तो ये जज्बा हमारे यहाँ शुरू से है। फलाही जज्बा ख़ानदान से आया? ख़ानदान से। और इसी तरह बेगम का और मेरा दोनों का हमारा ये कि हम किसी का दुख नहीं देख सकते, हम अपने मुंह का निवाला दे देते हैं निकाल के। तो जहाँ भी हमने देखा कि ज़रूरत है, मतलब ये शहाबुद्दीन गौरी का मज़ार, जो शख्स बानी हो मुसलमान रियासत का हिंदुस्तान में बुनियाद डालने वाला, उसके शान एक मज़ार होना चाहिए। तो किसी ने पूछा कि आपने क्यों बनाया, मैंने कहा इसलिए बनाया, हमने भोपाल से आके कि आपका हीरो रंजीत सिंह है और हमारा हीरो शहाबुद्दीन गौरी है।
डॉक्टर साहब, एटम बम से बहुत तबाही होती है। डायनामाइट बनाने वाले नोबल ने नोबल प्राइज़ शुरू की है। आपको भी कभी ऐसा ख्याल आता है? हर चीज़, छुरी हो तलवार हो, कुछ हर एक जो है उसके दो इस्तेमाल हैं। आप छुरी से भी कत्ल कर देते हैं, तलवार से भी कत्ल कर देते हैं। हमारा जो मकसद था एटम बम बनाने का वो ये था कि पाकिस्तान के ऊपर आँच ना आए। जिस तरह 71 में आपके साथ सलूक हुआ, हम ये चाह रहे थे कि ये वाक़या पाकिस्तान के साथ कभी दोबारा ना आए। तो इस नज़रिए से मैं आया था। देखिए, मैंने हिंदुओं को देखा था हिंदुस्तान में, उनकी नफ्सियात से वाकिफ़ था। क्या हिंदुओं से बहुत नफरत थी आपको? नफ़रत नहीं, मैं उनकी नफ्सियात से वाकिफ़ हूँ कि उनको जब भी मिलेगा वो आप पे ज़रबकारी लगाएंगे। वो पाकिस्तान को ख़त्म करने का सोचेंगे, जब पाकिस्तान बनता जब भी नहीं सोचा था। और ये तो इसलिए मैं यहाँ आया। और बम का फ़ायदा आप ये देखिए कि 71 के बाद आज तक कोई वार हुई, आपका कोई आदमी जंग में मरा सिवाय इसके कि जो कारगिल में मुशर्रफ ने बेवकूफ़ी की थी, आबेल मुझे मार वाली, उसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ ना, आज तक कोई जंग नहीं हुई। वरना अब तक आपके टुकड़े उड़ जाते मुल्क के। डॉक्टर साहब, आपको जानवरों से प्यार है, घर में बिल्ली रखी हुई है, कुत्ता रखा हुआ है, बंदर आपके स्विमिंग पूल पे पानी पीने आते हैं, नहाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एटम बम की तबाही है, तो ये आपकी शख्सियत में तजाद नहीं है? मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि एटम बम का मकसद ये है खूनरेज़ी रोकना, पाकिस्तानी आवाम को हिफाजत देना। उसका मकसद सिर्फ ये था कि आप महफूज रहें और अपनी माशी तरक्की पर ध्यान दें। बदकिस्मती से सब चोर लुटेरे आए और उससे फ़ायदा नहीं उठाया। मुल्क का जो हशर किया वो आपके सामने है। एक तरफ से जब आपको डिफेंस से बेफिक्री हो जाती तो आपको ये चाहिए था कि मुल्क की तरक्की पर ध्यान देते। तालीम, माशी तरक्की, सनती तरक्की, ये सब चीज़ें होती, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया ना। किताबें किस तरह की पढ़ते हैं? ऑटोबायोग्राफी साइंटिस्ट वगैरह की, इस्लामिक हिस्ट्री से बहुत शौक़ है, और दूसरी वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह। मामूली कीमत के कपड़े, कहा तो ये जाता है कि आपके बैरून मुल्क खुफिया अकाउंट हैं, बैरून मुल्क होटल हैं, वो सारी दौलत कहाँ है? वो मैंने सब डोनेट कर दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। मेरे पास जब आया तो मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि तुम सब ले लो। क्या ये ऐसे इल्ज़ामात हैं? झूठे पक्के अव्वल दर्जे के। मैंने आपको बताया ना कि जितने मुनाफिक और झूठे इस कौम में मिलेंगे आपको, खासतौर से हुक्मरानों में नहीं, और कहीं नहीं मिलेंगे। हम लोग जो हमें जानते हैं, हमारे साथ काम करने वाले 30-30 बरस से घर वाले, उनसे पूछ लें कि जितनी सादा ज़िंदगी हम गुजारते हैं, जितना सादा हम खाना खाते हैं, जितनी ईमानदारी से हमने काम किया, आज तक सरकारी चीज़ यूज़ नहीं की। अगर दफ्तर का आदमी आया तो उससे काम लिया तो उसको हमेशा 500 रुपये दिए। डॉक्टर साहब, कितनी पेंशन मिलती रही आपको? पहले तो मिलती थी 4,467 रुपये, अभी 19,000 हो गई। फिर बाद में गवर्नमेंट की स्पेशल पेंशन दी है। जब उन्हें ये पता लगा कि इनके पास कोई पैसा वैसा नहीं है, इन्होंने कोई चोरी नहीं की, और ये सब बकवास थी, प्रोपेगेंडा था, ना मकान है, ना अकाउंट है, ना कुछ है, तो फिर आए कि जी हमें पता है आपको बहुत तकलीफ़ है फाइनेंशियली, बहन भाइयों से ले लेके गुजारा कर रहे हैं, तो फिर एक स्पेशल पेंशन दी। कि आपकी टीवी की एक औरत होती जो पहले सब्जियाँ बेचती थी, वो एक दिन एक प्रोग्राम में कह रही थी, बहुत दिन हुए, तो जी इनके 23 प्लाट हैं इस्लामाबाद में, 23 बंगले। एक और साहब हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा मशहूर कंपेयर कहते हैं, वो कहने लगे कि जी ये तो ठीक है, इनको बंद कर दिया, लेकिन इनके जो मिलियंस बाहर रखे हैं वो भी तो मंगाओ। तो कितने प्लाट आपके हैं इस्लामाबाद में? पूरा इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान मेरा नहीं, वैसे जहाँ जैसे आपकी ज़ाती मलकियत कितने हैं? मेरी ज़ाती मलकियत जो घर आपने देखा था वो है, और एक बनी गला में जो हमने बनाया था, और उसके कागजात मौजूद हैं, पैसे जिस तरीके से हमने लगाए। ये इल्ज़ामात क्यों लगाए? इस मुल्क में झूठ बोलना, दरोगोई तो कामन है ना, जिस पे जो चाहे इल्ज़ाम लगा दो। जो चोर हैं, डाकू हैं, उन पर इल्ज़ाम नहीं लगते। वो साहूकार हो तो उनकी सफाई पेश होती है कि नहीं वो तो बहुत ही ईमानदार हैं, नौमौलूद बच्चे की तरह हैं। एटमी मुल्क पाकिस्तान में हर तरफ लोड शेडिंग के अंधेरे हैं, क्या न्यूक्लियर तवानाई से ये मसला हल हो सकता है? ये हो सकता था बहुत। देखिए, अगर आप करना चाहें, कोई काम भी आप करना चाहें तो उसको आप नेशनल लेवल पे लें, नेशनल पॉलिसी बनाएं, गाइड करने वाले सही हों, लेकिन जहाँ चीज़ें जाहिलों के हाथ में हों
वो कुछ कर सकते हैं। नहीं, क्या तरीका है, कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट देखिए, तरीके बहुत से हैं, लेकिन अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना, अब उसके बाद कोई सलूशन, कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। आप नाराज़ हैं लोगों से? लोगों से तो नाराज़ नहीं है, लेकिन एहसान फरामोश से तो नमक हरामों से नाराज़ है। आवाम से नाराज़ नहीं है, आवाम तो बेचारे बहुत मोहब्बत देते हैं। आपने खुद अभी मेरी बेगम को देखा, सीधी सादी बेचारी किन जाती, कितने गुस्से में आई वो, जिसके साथ ये हो कि 6.5 साल से बंद रखा है, बच्ची को नहीं आने देते, मिलने नहीं देते। बोल देते कि लुटेरे डाकू तो पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं और हम इस मुल्क के लिए ख़तरा बन गए, जबकि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। 9 साल से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन से। गैर मुल्की अखबारात में आता है कि टम्बकटू में आपका कोई होटल भी है। जी बिल्कुल होटल है, हमारा तो नहीं है। हमने तो एक गरीब को बना के दिया था बेचारे का, वो बेहद गरीब था, मुसलमान था, बेहद गरीब लोग हैं। हम सब ने मिल के 8-10 आदमी ने चंदा करके तो तकरीबन $50,000 थे, उसको वहाँ उसने जगह ली थी और उसको उसने बनाया। अगर हमारा तो हमारे पास वहाँ से पैसे आते कि नहीं आते, और हमें वहाँ बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। अगर हमें बनाना होता तो यहाँ इस्लामाबाद में 1-2 घर ख़रीद के उससे आमदनी नहीं कमाते। डॉक्टर साहब, ज़िंदगी में किसी बात का पछतावा भी है? इस कौम के लिए काम करने का। हाँ, वो ये होता है, कभी कभी आदमी सोचता है ना कि कोई और काम करता, तालीम की तरफ ध्यान देता बजाय ये काम करने के ना, एजुकेशन की तरफ प्रोफेसर बन जाता। मेरे पास बहुत पेशकशें थी, लेकिन एकदम ये जब हिंदुस्तान ने धमाके किया तो 74 का, तो फिर मैंने देखा कि पाकिस्तान का जो वजूद है ख़तरे में पड़ गया है, तो इसलिए वो काम छोड़ के तो इधर आ गया। डॉक्टर साहब, पसंदीदा गुलकार या गुलकारा? इकबाल बानो और उसके बाद मुन्नी बेगम, आबदा परवीन, ये जो थी माशाल्लाह बहुत ही। फिर हमारे पुराने गाने वाले मलका पुखराज और ग़ुलाम अली। देखिए माशाल्लाह, ग़ुलाम अली का कोई जवाब नहीं है। जब वो गाते हैं ना, वो चुपके तो गायब हो जाते हैं।